तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के नाम पर केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गत 11 वर्षों से मौन रहने के बाद अब राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी को नोटिसें जारी की गई है। उन्होंने केंद्र पर भड़कते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह अपराधियों की मानसिकता वाले व्यक्ति है, कहकर रेवंत रेड्डी ने उनकी आलोचना की। రాహుల్ గాంధీ గారు ముందే చెప్పారు, మా నాయన మీ దేశం కోసం ప్రాణం ఇచ్చింది, మా నాయన ఈ దేశం కోసం ప్రాణం ఇచ్చిండు, నేను నా ప్రాణాలను నా రక్తాన్ని దేశం కోసం ధారపోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని రాహుల్ గాంధీ గారు స్వయంగా చెప్పిండ్రు। వారి ఆదేశాల ప్రకారం ఇయాల ఈ దేశ యువత స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఈ దేశ సమగ్రతను ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। కాబట్టి ఈ వేదిక మీద నుంచి హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఈడీ ఆఫీస్ ఎదురుగా నుంచి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం। कांग्रेस पार्टी के विधायक व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने कहा कि आरएसएस बैकग्राउंड वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार गांधी परिवार की राजनीतिक रूप से हत्या करने की साजिश रच रही है। जग्गा रेड्डी ने केंद्र सरकार पर भड़कते हुए कहा कि इसलिए प्रवर्तन निदेशालय मामलों का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने निशाने साध रही है। उन्होंने कहा कि भारत देश के लिए गांधी परिवार ने त्याग ही नहीं बलिदान भी दिया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक भी व्यक्ति त्याग करने वाला है क्या? कांग्रेस पार्टी చాలా స్పష్టంగా అడుగుతున్నది। మనందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే। ఆ రోజు ఆర్ఎస్ఎస్ అనే ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు గాంధీ ఫ్యామిలీ మీద పగ రాజకీయం చేస్తున్నది। ఆ రోజు స్వతంత్ర కాలంలో కూడా చరిత్రలో మనం చూసినాము, బ్రిటిష్ కి వత్తాసు పలికిన ఆర్ఎస్ఎస్ స్వతంత్రం కోసము పోరాటం చేసిన గాంధీ, నెహ్రూ, ఇందిరాగాంధీ ఫ్యామిలీకి ఎంత తేడా ఉందో సమాజం అంతా కూడా ఒకసారి గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది। ఆ రోజు ఈ రోజు ఏ రకంగా అయితే ఈడీ డిపార్ట్మెంట్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము మరి ఈడీ పేరు మీద ఈ రోజు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారిని పదే పదే ఈడీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పిలిపించడానికి దీని ఇంకొక పెద్ద రాజకీయ కుట్ర ఉన్నది। राज्य के मंत्री केटीआर ने कहा कि राज्य में निवेश करने वाले निवेशकों के प्रति उनकी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि तैयारी यूनिटों को स्थापित करने वाले लोगों तथा युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया कराने वालों को सरकार पूरा प्रोत्साहन देगी। मंत्री केटीआर ने कहा कि राज्य की आय बढ़ाने वाले संस्थाओं को सरकार पूरी तरह से प्रोत्साहित करेगी। हाईटेक सिटी हुडा टेक्नो एन्क्लेव में जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का मंत्री केटीआर ने उद्घाटन किया। इनोवेशन कैंपस where T-Hub, T-Works and Image Tower, all of them would be housed in a single location, all would be co-located. So maybe Johnson Controls could participate in that. We were also telling him about how Telangana has built a world-class police command control center, which is almost on the verge of getting unveiled, and again potentially Johnson Controls could play a role or get a piece of that and see how we could work together. The third thing I also mentioned to him is the new administrative nerve center, the new secretariat building that is also coming up in the next few months, and how Johnson Controls again could possibly work with us and see how we could help you there as well. But one of the things I was also mentioning to राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद वैक्सीन हब के रूप में परिवर्तित होना यह सभी के लिए गौरव की बात है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद में मेडिकल टूरिज्म काफी विकसित हो गया है। हर कोई हैदराबाद की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में महामारी को रोकने के लिए कोरोना रोगी टीके का जन्म हैदराबाद में ही हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। ఎల్బీ నగర్ గడ్డి అన్నారం గ్రూప్ మార్కెట్లో 1000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రభుత్వ రంగంలో వస్తుంది। మీరు ఏమేమి సేవలు ఇక్కడ ఇస్తున్నారో మేము కూడా అన్ని సేవలు ఇస్తాం। క్యాన్సర్ ఇస్తాం, కిడ్నీకి ఇస్తాం, హార్ట్కి ఇస్తాం, అన్ని సేవలు కూడా తీసుకొస్తున్నాం।
ఇలా హైదరాబాద్ ఏమైంది అసలు బ్యాడ్లకి ఏంటంటే ఎన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినా ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినా ఎవరు ఆలోచించలేదు. అదే 150 ఏళ్ల కింద బ్రిటిష్ పీరియడ్ లో ఆ బ్రిటిష్ ఆర్మీ కోసం పెట్టిన గాంధీ దవాఖాన, నిజాం నవాబ్ పెట్టిన ఉస్మానియా దవాఖాన. అటు నిజాం పెట్టింది బ్రిటిష్ దవాఖాన తప్ప కొత్త దవాఖానే రాలేదు. బొక్కల దవాఖాన వస్తే దాని పేరే నిమ్స్, నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్. ఆ బొక్కల దవాఖాన కూడా నిజాం పెట్టింది. మరి 70 ఏళ్లలో ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి ఒక దవాఖాన కొత్తది రాలేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన గాంధీ, నిజాం పెట్టిన ఉస్మానియా. ఒక్కటంటే వచ్చిందంటే ఒక్కటి రాలేదు. ఇప్పుడు सुपर स्पेशलिटी केयर बागा पेरुता ఉంది. राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि रक्तदान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर राजभवन में सांस्कृतिक सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान करना किसी का जीवन दान करने के बराबर है। उन्होंने बताया कि रक्तदान के द्वारा रक्तदाता के शरीर में सदैव स्वच्छ और ताज़ा रक्त रहता है। उन्होंने इस बृहत कार्य में युवाओं को स्वैच्छिक रूप से आगे आने का आह्वान दिया। Close relatives, please come to the blood bank and donate blood. We will go and tell that, and within few minutes, everyone will fly away from that area. Nobody will be around the patient. So even relatives are so hesitant to donate blood. Even they will, before that, they will tell, no, I am the closest relative, I am the uncle, I am the aunt. So I have to be with him. Like that they used to tell. But when we tell that, everyone will abscond. Nobody will be with the patient. So even the relatives are so hesitant to donate blood, but the donors. छावनी क्षेत्र के गन बाजार रसूलपुरा वार्ड 2 में स्थित सरकारी उन्नत पाठशाला एवं प्राथमिक पाठशाला का विधायक सायन्ना ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय पुनः आरंभ होने के संदर्भ में वे स्वयं विद्यार्थियों से मिलकर उनके साथ चर्चा करेंगे। इस अवसर पर सायन्ना ने स्कूल के विद्यार्थियों से सीधे बातचीत की। इस बातचीत के दौरान विद्यार्थियों ने सायन्ना से शिकायत की कि विद्यालय में जो समस्याएं हैं उसमें सबसे मुख्य समस्या पीने का पानी की है। इस कारण इस समस्या का परिष्कार किया जाए, जिससे सायन्ना ने संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि इस विद्यालय में जो समस्या है उसका परिष्कार कर विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। इस कार्यक्रम में कंटोनमेंट के सीईओ अजित रेड्डी, पूर्व चेयरमैन टीएन श्रीनिवास, टीआरएस पार्टी क्षेत्र अध्यक्ष कुमार मुदिराज, एमडी गफर यूसुफ, राजेश पाशा, नासर जहांगीर, सूत्र प्रवीण, गणेश सहित अन्य कई नेता कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। सीताफल मंडी डिवीजन में शहरी प्रगति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद श्यामल हेमा ने भाग लिया। यह शहरी प्रगति कार्यक्रम में शामिल हुई पार्षद श्यामला हेमा ने स्थानीय जनता से मिलकर साफ सफाई के प्रति सजग रहने से सुझाव देते हुए संबंधित अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े कूड़े कचरे को साफ करवाया। उन्होंने कहा कि बस्तियों में जहाँ कहीं समस्या हो उन समस्याओं का वहीं पर निदान किया जाए। पार्षद श्यामला हेमा ने कहा कि शहरी प्रगति कार्यक्रम बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसमें बाढ़ के पानी की समस्याओं से संबंधित क्षेत्रों की साफ सफाई, मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जल आपूर्ति विभाग के मैनेजर अन्वित, सहायक अभियंता कौशिक नायक तथा लक्ष्मी ने भाग लिया। आसिफ नगर में शराबियों द्वारा की गई घटना पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ट्विटर मंच से अपनी प्रतिक्रिया दी। यहां पुलिस ने वाहन पर शराबी चढ़कर अपने साहस का प्रदर्शन किया। इस वीडियो को रेवंत रेड्डी ने ट्विटर द्वारा लोगों से साझा किया। उन्होंने इसमें बताया कि यह दृश्य है हैदराबाद का ही है। अपनी प्रतिक्रिया में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हत्याओं, बलात्कारों को पार कर आज अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस के वाहनों पर चढ़कर हमला करने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। आज राज्य की यह स्थिति हो गई है, कहकर उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि इस शहर को, इस प्रशासन को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? उन्होंने सभ्य समाज से इस विषय में सोच विचार करने का आग्रह किया। राज्य खेल प्राधिकरण के चेयरपर्सन वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर खेलों को अधिक महत्व दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी खेलों में अपने निपुणता का प्रदर्शन कर देश के लिए, राज्य के लिए एक नई पहचान बनाना चाहिए।
भारत देश के राष्ट्रीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम में तेलंगाना राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे एकमात्र युवा खिलाड़ी शांति कुमारी का शमशाबाद हवाई अड्डे पर राज्य खेल प्राधिकरण के चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी ने भव्य स्वागत। इस कार्यक्रम संयुक्त महबूबनगर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव चिन्नवीरయ్య, कोषाध्यक्ष दसगिरी खान, बालानगर सोशल रेसिडेंशियल स्कूल की पीटी अरुणा रेड्डी, वनपर्ती जिला चिटियाला पूर्व तांडा ग्राम सरपंच लक्ष्मण नायक, शांति कुमारी के पिता अमृत नायक, मां मामिनी नायक आदि उपस्थित थे। यादगिर गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन आज नगर के उपमहापौर दंपति ने दर्शन किए। उपमहापौर मेते श्रीलता दंपति ने अपने विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर स्वामी के विशेष पूजा अर्चना कराई। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन उपरांत मेते श्रीलता ने बताया कि आज विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन करना यह मेरा सौभाग्य के साथ साथ मेरे लिए संतोष की बात है। इस कार्यक्रम में श्रीलता के परिजनों सहित सरकारी अधिकारी आदि उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के समय के केसीआर तथा आज के केसीआर में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्दीपेट जिला केंद्र में कुंडा भूदेवी गार्डन में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षीय जन कल्याण शासन के सम्मेलन में ईटला राजेंद्र बतौर मुख्य अतिथि भाग लिए। इस संदर्भ में ईटला राजेंद्र ने कहा कि एक समय था जब टीवी पर केसीआर दिखाई देते थे तो युवा खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। आज केसीआर टीवी पर दिखाई देते तो लोग उनकी आलोचना करते हुए अपनी असहनीयता व्यक्त कर रहे हैं। इसी मौके पर ईटला राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने पार्टी नहीं बदली है, टीआरएस वालों ने उन्हें उनकी पार्टी से बाहर कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब मुझे उकसाकर भड़काया जा रहा था उस समय मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए त्यागपत्र दिया हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज भी राज्य की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। ईटला राजेंद्र ने बताया कि आज तेलंगाना की जमीन पर भगवा झंडा फहराने के लिए अधिकांश लोग इंतजार कर रहे हैं। कार्वी के प्रबंध निदेशक पार्थसारथी पर और एक मामला दर्ज किया गया है। एक्सिस बैंक के 159 करोड़ रुपए को लेकर उसकी अदाई किए बिना चूना लगाया, इस आरोप पर मामला दर्ज हुआ है। पूर्व में 15 करोड़ के घोटाले में पार्थसारथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में सीसीएस पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पार्थसारथी सहित सीईओ राजीव रंजन, कृष्णा हरी, कृष्ण प्रभाकर, श्रीनिवास राजू, शेर शायरी तथा वर्क प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। इस समय कार्वी के प्रबंध निदेशक पार्थसारथी चंचलगुड़ा जेल में बंद है। राज्य में मानसून के बादल प्रवेश करने से नगरवासी खुश होने की अपेक्षा चिंता प्रकट कर रहे हैं। यहाँ हैदराबाद शहर में नालों के विस्तार, अन्य कार्यों की स्थिति को देखकर लोग भयभीत हो रहे हैं। हैदराबाद नगर में नालों के विकास का कार्य अधर भी चल रहा है। हैदराबाद नगरवासी पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखकर काफी चिंतित है। सरकार द्वारा अधिकारियों को सभी कार्य पूर्ण करने के आदेश जारी करने पर भी जहां के कार्य वहीं पर यथायथ पड़े हैं, जो हैदराबाद के निवासियों को चिंता का विषय बन गया है। इसी विषय पर हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि राजशेखर की विशेष रिपोर्ट। కూడా స్పందించి పూర్తి స్థాయిలో ఈ పారిశుద్ధ్య లోపాలను సరిచేస్తూ నాలాల అభివృద్ధి పనులు కూడా చేపడుతున్నామని చెప్పి దానికి ప్రత్యేక విభాగాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు। దాదాపుగా చూసుకుంటే 730 కోట్ల రూపాయలతో 755 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించినటువంటి ఎస్ఎన్డిపి పనులు 37 ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా జరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది। ఈ నేపథ్యంలో వర్షాకాలం సమీపించింది, ఋతుపవనాలు కూడా నిన్నే వచ్చినటువంటి తెలంగాణకి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా పనులు పూర్తి కాని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది। ఈ నేపథ్యంలో జనాలు మరింత ఇబ్బంది పడతారు। ఇప్పటికే నాలాలు జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కానీ ఆఫీసులకు వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। రోడ్డు మార్గం రోడ్డు దాటాలన్నా లేకపోతే ప్రయాణించాలన్నా పూర్తి స్థాయి ఇబ్బంది అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది। ఎందుకంటే ప్రతి
ప్రతిదీ కూడా రహదారులు ఆనుకొని ఉండటం, ఒక ప్రాంతానికి ప్రాంతానికి అనుసంధానిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఎక్కువగా రద్దీగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో ప్రతి ప్రాంతం కూడా నిత్యం జనాలతో రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్ అనే ప్రాంతంలో పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నటువంటి విమర్శలు అయితే వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. स्वदेशी स्टॉक मार्केट लगातार तीसरे दिन भी घाटे को पर बंद हुआ। मुद्रास्फीति बढ़ने के तथा और एक आर्थिक संकट आने की संभावना के चलते अनुमानों के बाजार में इसका काफी प्रभाव रहा है। आज प्रातः घाटे के साथ आरंभ हुआ स्टॉक मार्केट, उसके बाद थोड़ा संभलकर अचानक पतंग के राग पर पड़ गया। ट्रेंडिंग समाप्त होने के समय तक सेंसेक्स 193 पॉइंट लुढ़ककर 52,693 पर गिर गया। निफ्टी 42 पॉइंट के घाटे से 15,732 के पास फिर रह गया। बीएसई सेंसेक्स में भारती एयरटेल, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस ने लाभ अर्जित किए तो वही इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, रिलायंस, मारुति, एचडीएफसी लिमिटेड घाटे में रहे। विश्व देशों में क्रिकेट का जो क्रेज है वह थोड़ा बहुत नहीं, यदि क्रिकेट मैच है कहते हैं लॉक खोलो टीवी सेटों से चिपक जाते हैं। इसी बात को आड़ में रखकर कुछ संस्थाएं क्रिकेट प्रचार के अधिकारियों को करोड़ों रुपए खर्च कर अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसी नेपथ्य में मल्टी मिलियन टॉर्नी के प्रचार अधिकार बीसीसीआई के खजाने को करोड़ों रुपए ला दिए हैं। आगामी 5 वर्षों के लिए आईपीएल के प्रचार अधिकार को 44,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सोनी तथा जियो संस्था ने अपने झोली में डाल दिए। अब 5 वर्ष तक आईपीएल के प्रचार अधिकार सोनी तथा जियो संस्थाओं के अधीन में रहे।